master's from electronics and telecommunication. Then I started my journey as a site engineer under L&T and Honeywell, where I was recruited for Sahara International Airport. After that, I started my journey from GV Acharya College as a lecturer during 2011. Within few months, I became head of the department, and during 2017 to 2021, I was working as a vice principal over there. And then I started my own research center, that is Pro Engineers Learning and Research Center. Why I started that? Because many students are not getting practical knowledge, practical concepts clear. So there we started teaching and giving training to the students from standard 7, 8, 9, 10, 11, 12, diploma engineering, and many other aspirants, those who want to learn robotics, some other topics. So far we have developed 14 to 15 types of robots, and number of robots I think more than 1,000. Now coming to the today's topic, why we are here for the career counseling session, right? How many of you can drive bicycle keeping it on stand? Please stand up. Listen to me very carefully. How many of you can drive bicycle keeping it on stand? Is there anyone else? आप चला सकते हैं. What's your name? Anurag. Manas. Manas, what is your Manas behind driving bicycle keeping it on stand? That's the important point, that we are not listening carefully. What he said, I cannot drive, but मैंने सुना नहीं था, right? So now can you drive? No. Yes, Anurag. How can you drive bicycle? Please sit. No. My question was very clear. Can you drive a bicycle keeping it on? It is on stand, so obviously it won't work. Yes, we can only rotate the wheels, but it cannot be. I hope you understood. Please say. It can. Okay. So उसके लिए शायद इस सेशन के बाद हम लोग ग्राउंड पर एक प्रैक्टिकल सेशन करके देखेंगे, right? I am not saying that you are wrong, but I think we cannot drive, right? अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए हम लोग और कुछ अलग रिसर्च करके देख सकते हैं. Thank you Anurag, thank you Manas. Why I ask this question? Because before starting any session, student must be alert and their brain should not be on stand. Many students during the session keep their brain on stand like this, right? So do not keep your brain on stand, it won't work at all. I do not know about your personalities, I do not know about your hobbies, I do not know about your aim, ambitions, right? But I cannot change the railway track on which you are taking your journey, but I can show you the important stations where you have to halt, where you have to pick a next train, where you have to change your junction, which may certainly change the career. Last two students are very much happy about today's session, so I would like to call them here. Please come. Give a huge round of applause to them. Come forward. What's your name, beta? Himanshu and
Akshay, when I started my session, from that you two are laughing a lot. I am not understanding whether you are happy about this session or you are just taking a certain ajuba in front of you that ये कौन से जंगल से आ गया, ऐसा कुछ है? Then why you people are laughing continuously? I am not understanding. He was laughing, so I was laughing. Good. Sit here. Sit there. बहुत बच्चों के साथ डील करने के बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमें भी आ जाता है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जिन्होंने पहले इन सब फेजेस में जा चुके हैं वो आपकी मस्ती बरोबर पकड़ सकते हैं, बिकॉज टीचर्स भी कभी थे, ये भूलना नहीं चाहिए. बट जनरली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू टीज देम फ्रॉम बैक. इट इज़ नॉट गुड. यहाँ पर एक कल्चर मैंने देखा है कि मैं सर से भी जब बात कर रहा था, एंशियंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक का सारा कल्चर स्टूडेंट सीखते हैं. सो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, ये सिर्फ रेसिटेट करने के लिए, बोलने के लिए ना हो, उसका एक मीनिंग भी सबको समझ में आ जाए. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो करियर गाइडेंस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अलर्ट होना ज़रूरी है. आपका आज तक का करियर स्टैंडर्ड जूनियर केजी से लेकर 10th तक आपने कंप्लीट कर लिया है. विद इन फ्यू डेज यू विल गेट योर रिजल्ट्स आउट. रिजल्ट्स आने के बाद या रिजल्ट्स के लिए वेदर यू पीपल आर प्रिपेयर्ड आई डू नॉट नो, बट देयर इज वन माइंडसेट कि मुझे इतने इतने परसेंटेज मिल सकते हैं, right? And based on that I can choose this particular career. Some one of you have already decided that I'll go into NDA, I'll take medical, I'll take engineering. Fine. Some one of you might have made their mind, no, I'll go in sports, right? So ये जितने भी mindsets है वो कब change हो जाते हैं? जैसे ही result out होता है, within second we usually change our mindset. Why? Eligibility criteria के अंदर अगर आप नहीं हो, आपका mindset change हो जाता है. So everyone must be eligible for particular education or particular field, right? So सबसे पहले मुझे ये समझना है कि आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं. Raise your hand. Okay, I guess 10 to 12 people are there. Medical. Okay, again same 10 to 12 people are there. Other than these two, good. इन लोगों से मुझे ज़्यादा बात करनी है. तो मैं जानना चाहूँगा आप कौन से फील्ड के लिए सोच रहे हो? क्यों? Good. What's your name? Pius. Say, he said he wanted to become IAS officer. A good and huge dream, but a problem है. We should understand the ratio of getting selected for that particular post, right? Before analyzing all these different career options, I have one presentation for you. I'll just guide you throughout that presentation. At the end we will come to know with the different options, and then you can raise your questions for that particular career. We have some scholarship given by government, so I'll discuss that scholarships with you at the end of the session, because it is not like that every student is capable to get admission in particular college or particular branch. There must be some financial terms, financial aspects to be kept in mind as far as our parents and as far as their financial conditions are concerned. So the objective behind this session is to open up your wings. Right now you are like this butterfly, right? And many of you are trying to open the lid
at earliest. वैसे देखा जाए तो इस सेशन के लिए भी आना ये तुम्हारे दिल की इच्छा नहीं है, बट एक स्कूल ने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम दिया है इसलिए आपको यहाँ तक आना है. अदरवाइज पेरेंट्स भी आपको चिल्लाएंगे और टीचर्स भी आपको शायद डांटेंगे. ऐसा कुछ है नहीं? बट पहले तो 2-3 लोग हंस रहे थे कि सर सही, आपने सही समझा है. नॉट एन इशू. सी, करियर में जब भी हमें कुछ टास्क स्कूल से दिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके करियर को एनहांस करने के लिए ही है, राइट? सो डू नॉट टेक दिस एज जबरदस्ती का एक्टिविटी. दैट एक्टिविटी इज हेल्पफुल फॉर योर ओन करियर. So first option I have given over here is career in commerce. बहुत से स्टूडेंट्स को कॉमर्स के आगे करियर्स पता नहीं है, एंड मेनी ऑफ दी पेरेंट एंड रिलेटिव्स आर थिंकिंग कि कॉमर्स में करियर करने वाला उतना होशियार नहीं होता है. इट इज नॉट लाइक दैट. वंस यू चूज कॉमर्स यू हैव n number of options. For example, after commerce you can enter into banking sector, you can enter into accounting sector, you can enter into chartered accountant or CAs, right? But iske apart from this there are one or two additional options which you might not aware. One is CFWA, company finance work analyst. Company finance work analyst. It is as good as same as that of CA, right? And you will get salary more than CA if you have completed CFWA. There is one more opportunity after or during the commerce, that is BAF, banking and accounting in finance, right? So these are the two booming topics for which you can enroll yourself if you will complete 11th and 12th in commerce. Fine. So these are the two opportunities. And third very most important opportunity is if you will give entrance exam which is called IBPS PO or IBPS. Once you give that examination at the last year of commerce or third year of commerce, you will be eligible to get job or recruited as a manager in state bank or central bank. And the basic salary of every manager in state bank or central bank starts from 1 lakh onwards. Fine. So I hope you got me clear what are the opportunities under commerce. I'll repeat again: CFWA 1, BAF 2, and third is IBPS 2. These are the very booming options if you will choose commerce. And then again, the student like Pius, those who are looking for IAS and other opportunities, but for them UPSC, they cannot give UPSC. For UPSC we should be with the background of science, 11th 12th साइंस करके ही जाना होगा. और अगर देना ही है तो फाइनल्स TY के बाद आप दे सकते हो. किसी और स्ट्रीम के साथ अगर आप जाते हो तो आफ्टर TY यू कैन अटेम्प्ट फॉर UPSC MPSC. और अगर 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में किसी जाना है, इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर NDA? ग्रेट. Irrespective of your height, irrespective of your vision, irrespective of any disease, irrespective of any physical damage, you can choose UPSC after 12th. Once you choose UPSC examination and once you qualify that UPSC examination, you can be available for NDA, National Defense Academy. And basic stipend starts once you enter into NDA is 64,000 per month. It is not salary, it is stipend, because you will not be working as a cadet over there, but you will enroll as a student.
where I am talking about NDA, right? So NDA में जाने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना है? यूपीएससी एग्जामिनेशन। एंड उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है जो सातारा में काम करता है, SPI। उसका एग्जामिनेशन अभी जस्ट शायद मई के एंड तक उसका एग्जामिनेशन ओपन होगा। SPI, सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। Usually there are only 60 seats, not more than that. And last year the applications were around 8,000 throughout the India, and from that they have selected 150 after the written examination, and after the interview they have taken 60 candidates for SPI course, and that SPI is basic 11th and 12th college along with NDA preparation, right? So that is the best option those who are thinking about NDA, because यहाँ पर near Ambernath, near Kalyan, near Thane, if you are thinking about choosing any coaching classes for NDA, is not the good option as compared to SPI. So I think you should at least try, एक बार आप एग्जाम देकर देखो उनका एंट्रेंस एग्जाम। फाइन। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपको थॉट्स क्लियर है? श्योर? ओके। सो इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। 10+2 कॉमर्स, फाइनेंस, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड, स्टॉक ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट। रिसेंटली आप सभी लोगों ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा। व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो वर्ड states that hidden. Crypto, the word crypto is hidden currency, that is e-currency we can say, or bitcoins are the cryptocurrencies in which you can trade your finance or funds, but it is very risky, right? अगर आपने माइनिंग स्टार्ट किया उसमें प्रॉपरली, कुछ बच्चों को ये पता भी होगा कि माइनिंग किया जाता है बिटकॉइन में। सो माइनिंग करने के बाद अगर आपका फंड्स प्रॉपरली रेज हुआ तो वेल एंड गुड। इफ़ यू फॉरगेट फॉर माइनिंग, सो विद इन अ डे जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया था, अगर वो लेटेस्ट टेक एग्जांपल, यू हैव इन्वेस्टेड 1000 बिटकॉइंस एंड विद इन अ डे शायद वो 1 लाख बिटकॉइंस भी हो सकते हैं, बट विद इन अ डे -1 लाख भी हो सकते हैं। So it is very risky. Until and unless you will not get proper consultancy about cryptocurrency, do not enroll anywhere. Open source applications बहुत मार्केट में मिलते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, मैक एप्लीकेशंस, जनरली स्टूडेंट्स उसे डाउनलोड भी कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं। I met one kid who was in 7th standard and he invested around 1000 rupees by saving few pennies from his father's पॉकेट मनी। सो वो लॉस भी होता है, राइट? बिकॉज इस एज में यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बेटर फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट इंटेलिजेंट, और आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस, बट समवेयर कहीं पर हमें मार्केट का सिनेरियो पता नहीं है एंड देन फेल हो जाते हैं। अगर वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी समझना है, you must understand BSE and NSE first. What is BSE, NSE? Do you know that? Yes or no? Yes, correct. Bombay Stock Exchange and Exchange. Very good. I am very happy to see that कि इस एज में इन बच्चों को इतना नॉलेज है। शायद हम इंजीनियरिंग करने तक भी हमें इतना नॉलेज नहीं था, बट आप लोगों को आज 10th में ये नॉलेज है। That shows that you are keeping your knowledge updated एंड जनरल नॉलेज अच्छा है आपके पास। बट NSE और BSE में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी में आगे जाना थोड़ा गलत हो सकता है। फाइन, ओके। करियर इन इंजीनियरिंग। बिफोर मूविंग अहेड विद द करियर इन इंजीनियरिंग, आई हैव वन क्वेश्चन। व्हाई ऑल स्क्रीन्स, laptop screens, TV screens, projector screens, theater screens are horizontally wide?
Why not vertical? सी वर्टिकल में तो पूरा इंसान दिखेगा ना, सो वर्टिकल क्यों नहीं है, हॉरिजॉन्टल ही क्यों है? एनीवन? वाइड तो वर्टिकली भी वाइड कर सकते हैं हम लोग, वो भी वाइड है। अभी आपका मोबाइल कैसे है? तो ओके, थोड़ा और टेक्निकल और साइंटिफिक आंसर। रियल रियलिस्टिक, ठीक है। और करेक्ट। व्हाट्स योर नेम? त्रिशा। त्रिशा के लिए एक बार जोरदार ताली होगा। What is the most important answer is, look at me, human eye can easily deviate in horizontal direction rather than vertical. Vertically we have some restrictions and difficulties to move our eye retina. So horizontally, as our eye is horizontally wide, so it can cover more area if our screens are horizontally wide. और ये उनसे मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था जो स्पेक्टिकल्स पहन कर बैठे हैं। अगर वो उनके स्पेक्स को ध्यान से देखे तो वो कैसे हॉरिजॉन्टली वाइड है ना, राइट? सो इंजीनियरिंग में अगर किसी को एंट्री करना है तो बॉस फिजिकल वर्ल्ड को थोड़ा और ध्यान से समझना जरूरी है, समझा या नहीं? और एक क्वेश्चन पूछूं? श्योर? कुछ तो अभी यॉर्निंग भी कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछूं एक? नहीं? ओके सर, अभी आपने तो अपना सेशन रेडी करके लाया होगा, आपको यस हो या नो, आपको जो करना है वो आप करोगे, राइट? व्हाई क्लाउड्स आर ब्लैक इन रेनी सीजन? क्लाउड्स फॉर्मेशन तो सेम है ना, सीजन कोई भी हो। इज देयर एनी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड? प्रोसेस में चेंज है कुछ? हेलो, इज देयर एनी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लाउड्स? नो, ऑब्वियसली नॉट। देन अब जो क्लाउड्स है इट सीम्स white and during the rainy season it appears as black. Why? Yes? एक उसमें पॉइंट मिसिंग है, बट यू आर राइट। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। व्हाट्स योर नेम? गरिमा। तो व्हाट शी सेड, during the rainy season density of water vapor increases and that creates a shadow, but when it creates a shadow it means it stops the sun rays coming through the clouds। अब जो दिख रहा है उसमें से sun rays easily pass हो रहा है and that is the reason it appears as white and otherwise it appears as black, reflection of light lesson you might have studied during the science. Fine. So moving ahead with the engineering, who is engineer? One who can plan, one who can manage and put through by skillful acts or contrivance, right? That person can be called as engineer. It is not like that degree holder can be called as engineer, but one who can plan, manage, create the thing, machines, materials, can be called as an engineer. So it is the application of scientific mathematical principles to practical ends such as design, manufacture, operation, structure, machine, process. आसान भाषा में जो इंसान का काम आसान कर दे वो मशीन है, राइट? तो थ्री इडियट्स बहुत से बच्चों ने देखा है। सो इंजीनियरिंग का डेफिनेशन सबको पता है, which reduces human efforts and one who works on that is called as engineer. But what all things can be termed as under engineering? All things which are situated around us can be covered under engineering. Nowadays Lenskart app is there, right? Lenskart, how many of you are aware with Lenskart?
ऑलमोस्ट ऑल। सो अब उनका एप्लीकेशन जब डाउनलोड किया जाता है, प्रीवियसली कुछ प्रॉब्लम्स थे उस ऐप के साथ, सच एज दैट ऐप वाज नॉट गिविंग रियलिस्टिक व्यू ऑफ स्पेक्स, बट नाउ वंस वी आर स्कैनिंग आवर फेस with artificial intelligence, it scan our face and it fix the frame on our face inside that app. Am I right? It means there is one advancement of artificial intelligence. Now what is artificial intelligence? The intelligence which is given artificially to the machine is artificial intelligence. Means if I need to adjust the temperature of that AC, I have to go in front of that AC with the remote and I can adjust the temperature. But what artificial intelligence does, according to room temperature, it will adjust to certain temperature. According to number of people present over here, it will judge, analyze, sense, and it will adjust the temperature. Is nothing but the artificial intelligence. I hope you understood. Nowadays, these particular branches, artificial intelligence, machine learning, cloud computing, big data, Hadoop, all these are the booming concepts for engineering aspirants, right? So under that engineering, what all branches are there? We will quickly review that branches. Is it visible to you? What is first branch? What do you mean by biomedical? Sir, whether it is medical branch or engineering branch? Engineering. Why? Because doctors or hospitals are using certain machines, and that machines will be manufactured by biomedical engineers. So those who will not get admissions under medical field, they can adopt for biomedical, because they will be in touch with biological things, medical things along with engineering, right? Because आज के डेट में डॉक्टर्स को अगर ऑपरेशंस करने हैं, लेट अस टेक एग्जांपल स्पाइन का एक ऑपरेशन करना है, तो स्पाइन के ऑपरेशन के लिए मिनिमम इन्वेसिव ऑपरेशन, व्हाट आई सेड, मिनिमम इन्वेसिव ऑपरेशन टेक्निक्स आर देयर. सो व्हाट डज इट मीन? अगर स्पाइन का ऑपरेशन करना है, सो प्रीवियस कुछ 5 to 10 इयर्स पहले पूरा बैक साइड में एक 6 to 7 इंच का कट किया जाता था. स्पाइन पे 6 to 7 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है. अगर उसको स्टिचेस करने हैं तो मोर देन 24 स्टिचेस लगाने पड़ेंगे इतने बड़े कट के लिए. बट मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक क्या करता है? इट जस्ट पोक 2 नीडल्स just nearby to the area which is to be treated. 2 needle insert करके we can do the operation with the minimum invasive. So it contains one sensor, one camera and one lens, one laser, and that does the operation over there. So who did this invention, innovation? Biomedical engineers, right? And because of that, what had happened? It reduced the operation cost, it reduced the pain of that patient, it can reduce what she said, risk, टाइम. जैसे कि पहले मोती बिंदु के ऑपरेशन के लिए बहुत टाइम जाता था, अभी आधे घंटे में पेशेंट जाकर बाहर आ जाता है, राइट? सो ये सारी चीज़ें बायोमेडिकल में किए जा सकते हैं. और उसके लिए कॉलेजेस, थाने में एक कॉलेज है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, मुंबई में 5 कॉलेजेस हैं. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर इंजीनियरिंग, माय सजेशन इज डू नॉट गो फॉर 11th and 12th. डायरेक्टली यू कैन एंटर इनटू डिप्लोमा and then you can go for engineering. Sir, but we are planning for IIT, NIIT, VJDL. How many of you are there to wish to go in IIT and NIITs? Please stand up. Please stand up. Good. आपके माइंड में क्या थॉट है कि आप IIT में क्यों जाना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज कोई और गया है इसलिए, या आप
आपके माइंड में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है? पैकेज, दिल की बात बताओ उसकी, दिल की कहने से सब पेट की बात बताओ कि पैकेज एक अच्छा मिल सकता है मुझे आईआईटी में जाने के बाद, और अपॉर्चुनिटीज सच एज I have met many IITians when I went here. So many of them said that they have prepared for 2 years and after that they are following their dreams. Like such as one of them said that she is a sprinter. so she is looking for better opportunities and options, rather she can explore herself better if she will choose IIT. What is your opinion? So I think if I went an IIT, I'll be better in maths. It might be have quality on about mathematics and I will be doing that. Good. Next, green. UPSC. Good. Sir, for better job opportunity. Okay. So for better package. सर मुझे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट करना है, इसके लिए आईआईटी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। मुझे मतलब क्या डेवलपमेंट आप सोच रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन में क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है? सर कंट्री डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Okay. ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो कंट्री का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। Good. तो वो सेक्टर में काम प्लीज सी, अगर आप में से कोई यहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी या पैकेज के लिए सोच रहा है ना, तो उनके लिए एक सिंपल ऑप्शन दे दूँ, आप कुछ भी मत कीजिए, एक छोटा बिजनेस चालू कर दीजिए, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अच्छा बिजनेस या अच्छा अर्निंग मिल जाएगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप? करियर गाइडेंस करना है आप तो पूरा हमें ट्रैक ही चेंज करने के लिए कह रहे हो। एक कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, क्विक कैलकुलेशन। हम सबने पानी पूरी तो खाई होगी, ठीक है? शॉर्टकट में कैलकुलेशन करते हैं। जनरली हम कभी भी किसी चाय के ठेले पर जाते हैं, एक अच्छा ब्रांडेड चाय का ठेला देखते हैं तो सोचते हैं यार मैंने भी ऐसा कुछ करना चाहिए, राइट? तो MBA चाय वाला या ऐसे कुछ हमने ऑप्शंस सुने हैं, तो तब हमें लगता है यार ये इंजीनियर्स होकर इंजीनियर शॉर्मा ओपन कर रहे हैं, MBA चाय वाला ओपन हो रहा है, तो व्हाई टू स्टडी दिस मच? अगर यही चालू करना है तो कुछ कह रहे थे आप उसमें? सर वो लोग मतलब उन लोग का मार्केटिंग स्किल रहता है, वो लोग तो नाम रखते ना, वो तो रियल भी नहीं करते, बस वो लोग नाम रखते हैं। नहीं, ऐसे शायद 10% करते होंगे, बट आई हैव 90% पीपल कि उन्होंने इंजीनियरिंग किया है। डोंबिवली में एक ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, इंजीनियरिंग किया है और उन्होंने इंजीनियर शर्मा ऐसे एक छोटा सा शॉप खोल कर रखा हुआ, राइट? तो उसके लिए एक छोटा सा क्विक एक कैलकुलेशन, पानी पूरी हम लोग खाते हैं मोर और लेस 20 रुपीज ऑन एन एवरेज, एक प्लेट 6 पूरी, राइट? किसी के मुंह को अगर पानी आया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट 10 मिनट्स में कितने लोगों को वो देता है? बी क्विक फास्ट, 4 या 5, राइट? सो अगर 5 लोगों को उसने पानी पूरी सर्व किया विद इन 10 मिनट, सो हाउ मच ही अर्न? 100। 10 मिनट्स के ऐसे कितने स्लॉट्स होंगे इन आवर? 6। इट मींस इन अ आवर ही कैन अर्न 600 if he is working only for 5 hours और उसको 5 hours का ही बिजनेस मिला। ऐसे तो नहीं है दिन भर चलेगा, नहीं है। अभी इस वक्त कोई हम में से जाने वाला पानी पूरी खाने नहीं, शायद शाम के समय होता तो हम लोग खा सकते थे। इट मींस इफ वी कैलकुलेट ओनली फॉर 5 hours हाउ मच ही कैन अर्न? 3000 अ डे, राइट? इनटू अगर मैं 25 भी करूँ, 5 दिन उसने वीक ऑफ छुट्टी मना लिया, तो 25 इंटू 3 हाउ मच? 75
1000 पर मंथ, उसमें से आई कैन अंडरस्टैंड 15,000 उसका इन्वेस्टमेंट था, पोटैटो, पूरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना सब करके उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 15। अभी कितना बाकी उसके पास? 60,000 ही हैज हिज सेविंग्स। उसके लिए उसको पर्टिकुलर कोई क्लासेस ज्वाइन करना था नहीं, कोई एजुकेशन लेना था, कोई जगह खरीदनी थी, कहीं रेंट देना था, रेंट नहीं दे रहे ना, ठेला लगा कर खड़ा है वो बाहर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से वहां से धक्का मार दे तो वो कहीं और कॉर्नर पर जाकर खड़ा हो जाएगा, राइट? यस और नो? 60,000 a month, it means yearly 12 into 6, 7,20,000 का पैकेज। तो अपने माइंड से ये थॉट निकाल दो सब लोग जिन्होंने अभी यहाँ पर खड़े रहकर ये कहा that I am looking for IIT for better package, wrong. Do not adopt or do not go IIT or NIT or medical just because you want a better package. It is a wrong thought, and because of that thought you cannot learn new things, you cannot adopt skills, you will just look behind the salary and at the end you will not get it. We have n number of examples. When I was working as principal, with me 1,200 students were there in a college. I have passed nearly 15 to 20 batches, right? You can multiply number of students afterwards. So हर एक स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर पता चल जाता है कि what that student can think, right? उसमें से I have noticed 90% of students are looking only for package and only 10% students are thinking and looking and working hard behind the skills. Again I'll repeat the dialogue. पैसे के पीछे मत भागो, किसके पीछे भागो? एक्सेलेंस के पीछे भागो। पैसा आपके पास खुद से आ जाएगा, राइट? जॉब्स नहीं है ऐसा कोई सेक्टर नहीं, हर सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है। आवर ऑफिस इज एट घनसोली, राइट? घनसोली नवी मुंबई में मेरा ऑफिस है। ऑफिस के एग्जैक्टली अपोजिट, रेलवे स्टेशन के अपोजिट में जियो कंपनी है। कौन सा कंपनी है? जियो। जियो कंपनी हैज इट्स ओन इंक्यूबेशन सेंटर। क्या है? इंक्यूबेशन सेंटर। डू यू नो व्हाट इज इंक्यूबेटर? न्यूबॉर्न बेबी को इंक्यूबेटर में कभी रखा जाता है अगर उसे कोई तकलीफ हो तो। व्हाट इज इंक्यूबेशन? वेयर वी कैन टेक केयर ऑफ दैट न्यूबॉर्न बेबी। तो सर क्या जियो ऐसे बेबीज को संभालने के लिए इंक्यूबेशन कर रहा है? न्यू? नो 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 नो, इट इज फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। जो नया टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च करना है, टू टेस्ट एंड रिसर्च दैट टेक्नोलॉजी, दे हैव इंक्यूबेशन सेंटर एंड दैट बिल्डिंग इज ऑफ 4 stories। अब आपका जितना स्कूल है उतना ही उनका इंक्यूबेशन सेंटर है। अब उस इंक्यूबेशन सेंटर का कॉस्ट क्या होगा पता है आपको? 1,800 crores का वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अंदर लाखों इंजीनियर्स इंक्यूबेशन सेंटर में रिसर्च कर रहे हैं। अभी जो 5G लॉन्च किया अंबानी सर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ 5G लॉन्च हुआ था, आपको शायद याद होगा, आपने देखा भी होगा। तो जब 5G लॉन्च किया, उन्होंने 5G आज डेवलप नहीं किया है, 5 साल पहले डेवलप किया है। तो लॉन्च आज क्यों किया? कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको कंप्लीट करते 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 दे लॉन्च्ड in 2023, but there n number of engineers are working for that research and development of 5G spectrum। electronics telecom background की भी है, computer background, IT background, electrical background, all people are working over there, right? सिर्फ अकेले जियो कंपनी में अगर हमें बस से टूर करना है, किससे? it will take 7 days। इतना बड़ा वो जियो कंपनी का एरिया है और जॉब अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। तो ये माइंड से निकाल दो कि अच्छा पैकेज नहीं मिलता।
आई हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया है, बेसिक बीएससी आईटी किया है। क्या किया है? बेसिक बीएससी आईटी। At the end of the final year, he or she adopted best course, skill boosting course such as Oracle, Java, Advanced Java, software testing. ऐसे कोर्स करके they got package of around 14 to 15 lakh. Initial package कितना? 14 to 15 lakh per annum. So it is not like that you cannot earn the best package, but you should think about skill enhancement. और उसके लिए अपने आप के अंदर झांकना आपको जरूरी है that in which field I am best. Such as she said, I want to work for mathematics, right? You said mathematics. So अगर mathematics में उसको work करना है, so she should know what is basic of maths, what is difference between delta, triangular delta, d and the curve delta. 3 से 4 delta के types हैं. Do you know what is the difference between all delta? No. What it is? Okay. Say it means delta is for to represent rate of change. Delta is to represent rate of change. मैंने एग्जाम्पल आपके सामने बताया कि अगर मुझे मैथमेटिशियन होना है, so I must know basic fundamental things about it. If I want to go into engineering, I must know about mathematics along with physics, right? If I am not aware of physical world, I cannot do anything. How many of you have heard about प्रणव मिस्त्री? नाम लिख लो सब लोग, जो इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं या साइंस और साइंटिफिक चीज़ों में जो बिलीव करते हैं, एक नाम याद रखो. व्हाट इट इज? प्रणव मिस्त्री, राइट? हैव यू हर्ड अबाउट दिस पर्सन? किसी ने सुना है, देखा है? नहीं. आज इस सेशन के बाद इमीडिएट अगर आप कुछ कर सकते हो तो YouTube पर जाकर ये पूछो प्रणव मिस्त्री. इमीडिएट. He has developed sixth sense technology. आज तक किसी ने नहीं बनाया, वो उसने किया. He invested 7 years of his career for researching that sixth sense technology, and now he has developed sixth sense technology. तो इंजीनियरिंग में बूम कर दिया उसकी सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी ने. तो वैसे अगर आप खुद उसे एक बार देख लोगे तो आपको पता चलेगा इंजीनियरिंग होता क्या है और क्यों करना है इंजीनियरिंग, राइट? वी विल मूव अहेड. प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन. ब्लू वन. बायो एनवायरमेंटल, केमिकल एंड बायोकेमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल, एरोस्पेस, इन सबको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जैसे कि हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एरिया में है, तो ये किसके लिए मशहूर है? Production of weapons. So this comes under production engineering, right? वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, which covers fabrication, textile, petroleum, and number of other options are there under production engineering. Then mechanical engineering. I have one question. Looking at the electrical panel, please pay attention on this. Switches दिख रहे हैं आपको? Looking at the switches, which engineering comes in your mind? Electrical engineering, right? But I think looking at the switches, I can see mechanical engineering. How? Switch itself a mechanical, it has a mechanical movement, and to make
similar type of switches we need molds and bends. molds and bends, जैसे गणपति का मूर्ति बनाना है तो उसको एक मोल्ड और बेंड होता है, राइट, उसके अंदर एक पर्टिकुलर आइडल वी कैन क्रिएट. सो सिमिलरली अगर स्विचेस बनाना है आई नीड मोल्ड्स एंड बेंड. सो वो मैकेनिकली ही डाई क्रिएट किया जाता है एंड देन वी कैन गेट स्विचेस. सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज एवरीवेयर. जैसे कि एसी का नीचे का स्विंग, फ्लैप स्विंग करना है, व्हाट वी नीड मोटर्स, राइट. वो बनाने वाले कौन है? मैकेनिकल इंजीनियर. यूज करने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, राइट. एरोस्पेस एंड मरीन, बेलापुर में मरीन इंजीनियरिंग के कुछ कॉलेजेस है, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई. आफ्टर 11th 12th you can enroll for that, or after 10th you can enroll for marine engineering. But there is huge difference between marine engineering and shipping और NDA. इन तीनों में बहुत डिफरेंस है. मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद इट इज नॉट लाइक दैट यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब्स. प्राइवेट शिप पे आपको काम भी मिलता है. सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप एक पर्टिकुलर मरीन इंजीनियर बन गए तो आप शिप ड्राइव कर रहे हो और कैप्टन बनोगे. इट इज नॉट लाइक दैट. लॉजिस्टिक में भी जॉब मिल सकता है, किचन में भी जॉब मिल सकता है, शिप क्लीन करने का भी जॉब मिल सकता है, उसके टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए भी जॉब मिलते हैं. वी कैन नॉट determine what type of job you will get once you complete marine engineering, right? So before enrolling yourself for any option, you must understand throughout that what it consists of. या फिर मुझे फ्यूचर में उसके अंदर क्या करना होगा वो पहले स्टडी करके ही ऑप्शन अडॉप्ट करना है. और अगर आपको उसमें दिक्कत आए, आई शेयर माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर एनी हर्डल, for admission, for any other technical thing, I'll guide you. Chemical engineering, कोरोना जैसे प्रॉब्लम्स हम सब ने ऑब्जर्व किए, राइट. सो ड्यूरिंग दोज डेज वी वर वेरी मच वरीड अबाउट आवर हेल्थ एंड ओनली हेल्थ, नॉट बियॉन्ड दैट. सो वो हेल्थ कॉन्शियस होते होते हमने सैनिटाइजर यूज करना स्टार्ट कर दिया. वी अडॉप्टेड मास्क, वी अडॉप्टेड सेवरल अदर हैबिट्स. नाउ जनरली वी अवॉइड टू टच एनी अननोन और अनवांटेड थिंग्स, राइट. प्रायर टू दैट वी वर वेरी केयरलेस. खेलने के लिए भी हम लोग केयरलेसली खेलते थे, बट अब वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट आवर हेल्थ एंड वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर हेल्थ. अगर कोई गलती से स्नीजिंग भी कर दे बाजू में तो हम लोग डर जाते हैं, प्लीज आप चले जाओ या आप खुद चले जाते हैं. सो केमिकल इंजीनियरिंग ने कुछ नए एस्पेक्ट्स चेंज कर दिए हैं आफ्टर कोरोना, दैट दे हैव डेवलप्ड सच थिंग्स वेयर दे कैन मेंशन 99.99% जर्म्स हटाए. फ्लोर क्लीनर्स, अगर वो जर्म्स हटा दे तो आज हम लोग सैनिटाइजर क्यों यूज करते हैं? कॉमन सेंस है. हम लोग फ्लोर क्लीनर से ही हाथ धोते. कभी ऐसे हुआ है? नहीं. एंटीबायोटिक्स क्यों खाते हैं? इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन हैव फ्लोर क्लीनर्स. 99.99% जर्म्स हटा. सो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है. उससे बचकर भी रहे और उसे समझने की कोशिश भी करें, राइट. जैसे फ्रूटी में मैंगो का 1% भी नहीं. फ्रूटी अभी अभी वो लिखना चालू कर दिए दैट 10% ऑफ मैंगो एक्सट्रैक्ट. 10%. 500 ml के बॉटल में 10% इज नथिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इसेंस मिला मिलाकर हम लोगों को पिलाया जा रहा है और हम लोग बेवकूफ पिए जा रहे हैं. टुडेज टॉपिक इज नॉट रिलेटेड टू controversial discussion, but you must be aware what you people are doing and what you people are eating, right. क्योंकि उसके लिए कुछ और फील्ड्स है जिसको कहते हैं FSSAI, राइट. उसमें भी आप केमिकल इंजीनियरिंग करके जॉब कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर या फिर अलग अलग स्टेट्स के अंदर. विच ब्रांच? FSSAI.
आए। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के अंडर आप केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकते हो, या फूड एंड फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करके भी आप जा सकते हो। इज इट क्लियर? उसमें करना क्या है, आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू टेस्ट and give the certificates to the hotels, to the food productions, right, beverages। तो उन सब के लिए कौन ज़रूरी है? फूड इंस्पेक्टर। एंड टू बिकेम फूड इंस्पेक्टर यू मस्ट क्वालिफाई FSSAI एंड फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा। आई स्किप फ्यू टॉपिक्स बिकॉज सबको इसका मीनिंग पता है, उसका इम्पोर्टेंस पता है। यस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आज के डेट में बूमिंग कार, कोई बता सकता है कौन सा बूमिंग कार है? टेस्ला। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ला? इलेक्ट्रिकल कार। पर वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी उसके अंदर दिया है। लेकिन उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो टाटा हैज़ लॉन्च्ड फ्यू न्यू कार्स जिसमें रडार टेक्नोलॉजी भी दिया है, एंड दे कैन सेंस द ऑब्स्टेकल्स नियर बाय एंड द कार कैन इजीली अवॉइड दैट एक्सीडेंट्स, राइट। सो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी एक बूमिंग ऑप्शन आज के डेट में है। बट जैसे प्रायर टू 20 years कार वर मोर ओवर मैकेनिकल, नाउ इट इज मोर ओवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। हर एक चीज सेंसर बेस्ड है, राइट। So those who are doing artificial intelligence, they can also adopt themselves in automobile engineering और automobile companies में काम कर सकते हैं। एक पुणे के एक एरिया में चाकन MIDC नाम का एक एरिया है, वहाँ पर बजाज ऑटोमोबाइल्स में एक सेक्टर उन्होंने स्पेशली गर्ल्स के लिए रखा हुआ। सो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइक डन बाय गर्ल्स। सो फॉर वुमेन एम्पावरमेंट दे हैव चूजन दैट स्टेप। वाई आई एम हाईलाइटिंग दैट, अगर आप में से कुछ लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है या होना चाहते हैं, सो फॉर देम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। सिविल इंजीनियरिंग, वाई टू चूज इंजीनियरिंग, उसको आंसर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, द टू इंजीनियरिंग ब्रांचेस आर देयर। They'll get or they generally get certificate or license from government for government tenders. So government license और टेंडर्स के लिए आपको दो ब्रांचेस चूज करना है, कौन सा? इलेक्ट्रिकल और सिविल। सर फिर बाकी ब्रांचेस के लिए कुछ बेनिफिट नहीं है? ऐसा नहीं है, बाकी ब्रांचेस को जॉब अपॉर्चुनिटीज है बट दे कैन नॉट अडॉप्ट लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस अलग से नहीं मिलता है। और गर्ल्स के लिए और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सांता क्रूज में एक कॉलेज है SNDT यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसमें 0 रुपीज में डिप्लोमा करने का अपॉर्चुनिटी आप लोगों को है बीइंग अ गर्ल। बॉयज कह रहे सर हमारा तो हमें स्ट्रगल बहुत है, ठीक है। हमें आखिर तक कुछ शायरी लर्न करनी है। किसी ने पूछा कैसे चल रहा है? कट रही है जिंदगी और जी रहे हैं हम, उतना ही हमारे साथ बना हुआ, बिकॉज वी आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग एंड दैट इज व्हाई वी आर बॉयज। तो गर्ल्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है SNDT कॉलेज में, डिप्लोमा 0 रुपीज में है इफ यू हैव income certificate, and even if you are not having income certificate, the fees is very nominal, 13 to 14,000 per year, and at the end of the last year they allow you for apprenticeship in particular company and you will get stipend against that, so you can recover whatever fee you have paid। so वो भी एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास है अगर आपको डिप्लोमा करना है डायरेक्टली आफ्टर 10th।
A degree will help you to think independently, learn actively, advance in your career. It has many other benefits to adopt or to get a degree. So these are some statistics. Electrical computers 33.1% कैलिबर है इन सब के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में. मैकेनिकल एरोस्पेस के लिए 27.5% अपॉर्चुनिटीज, सिविल एनवायरमेंटल 15.8 एंड रेस्ट अदर हैव फ्यू but important opportunities in the market. So you can go either in research, development or design, production, sales, operation or construction. These are the streams under which you can go once you complete your engineering. Again, you can choose management jobs, education and consulting jobs. One animation, small animation for you to represent. All branches are equally important, right? So mechanical plus chemical कर दो तो क्या बनेगा? Mechanical, right? So Terminators और वैसे सब मूवीज देखने के बाद आप सबको पता चल चुका होगा कि केमिकल एंड मैकेनिकल दोनों का कॉम्बिनेशन एक नया कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है. जैसे बायोमेडिकल था, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, बायो इलेक्ट्रिकल भी है, बायो एरोनॉटिकल भी है. ऐसे अलग अलग ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज मिक्स इंजीनियरिंग के भी अवेलेबल है. Okay. After understanding engineering, we have n number of other opportunities such as army, NDA, medical, banking, arts, veterinary, research, agriculture and horticulture. इसमें से कोई भी अगर word आपको known नहीं है, you can raise the question, sir. I am not aware of this word or options related to this. Army, you all are aware. NDA, next. 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 What is mean by veterinary? उसके लिए एक कॉलेज वडाला में है. The short form of that is MAFSU, MAFSU. So that is the only college available in Mumbai for veterinary, and I think they have only 60 seats again. So tough competition है. शायद इस साल उनका इंटेक 120 होने वाला है. But those who are looking for veterinary, they can choose that college. Next. Research and number of things are there. IIT में समीर, SAMEER short form है ये समीर. Research lab उन्होंने create किया है. Those who are willing for fellowship और research के लिए जाना चाहते हैं तो उसके अंडर internship का एक ऑप्शन है. वो फॉर्म फिलअप करके आप वहाँ पर जा सकते हो और इंटर्नशिप कर सकते हो. ये मई मंथ में, अप्रैल मई में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. और एक ऑप्शन है, आप लोग लिख लो शायद, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, कल परसों ये लॉन्च किया है. ISRO announces free online certification course for students. ये ISRO ने अनाउंस किया हुआ है. The course is absolutely free. The participants are expected to have basic knowledge of remote sensing and digital image processing. Course study materials such as lecture slides, they will provide you lecture slides, video recorded lectures and handouts of important links and demonstration will be made available through IIRS FTP links. They will provide few links to you during the training. A certificate will be given to the participant who have 70% attendance in the course. Even though it is online, your attendance is mandatory. How to apply? Application have to be submitted online.
to participate in the program, interested organizations, universities, departments and institutes have to identify a coordinator at their end. So शायद we can arrange a coordinator if you people are interested. The identified coordinator will have to register his/her institute as a nodal center on the IIRS website. All participants have to register online through a registration page by selecting their organization as a nodal center. So links they have given. If you will search ISRO certification course, अगर आप ऐसे सर्च करो तो you will get that. अगर नहीं मिले तो I can share that to faculty members, and even if it is not available from them, you can ping me on WhatsApp. So at the end, very important slide to conclude today's session. Any question? एक पॉइंट शायद मैंने बताया था कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड वी विल डिस्कस. सो अगर आपको हॉस्टल के लिए भविष्य में कहीं जाना है, सो देयर इज वन कॉन्सेप्ट और स्कीम गिवन बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, पंजाबराव देशमुख वसति गृह योजना. Based on that, you will get 25,000 for a year against accommodation for any hostel related to colleges. So वो 25,000 आपको मिल सकते हैं अगर आप उसके लिए स्कीम के लिए अडॉप्ट करो तो. Apart from that, 36 different institutes and companies are there. They provide finance, fund, books and other related things to students, those who score more than 80-85%. So अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले रिजल्ट तो आई थिंक आप सबका रिजल्ट मोर देन 90% होगा. मुझे आपकी फेसेस देखकर तो लग ही रहा है, और मैं दुआ भी वही करूँगा कि आपको मोर देन 90% मिले, राइट. और अगर ऐसा स्कोर है तो आप लोग ये सारे स्कॉलरशिप्स को अडॉप्ट कर सकते हो. स्कॉलरशिप का सर एक लिस्ट है, हो सके तो मैं प्रिंसिपल सर को वो शेयर भी कर दूंगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू कीप एवरीथिंग ऑन स्लाइड. तो जिसे जो ज़रूरत है उसे वो देना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि हर एक को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है. शायद few of you might very sound for financial background, right, and few of you might not. तो उनके लिए स्कॉलरशिप ऑप्शन इज़ गुड. मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे कि स्कॉलरशिप के ऊपर पूरा इंजीनियरिंग किया, घर से 1 रुपया भी नहीं लिया, राइट. बट वो प्रॉपरली सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है. उस कंपनी में जाकर या इंस्टीट्यूट में जाकर सर्टिफिकेट सबमिट करो, यू विल गेट दैट स्कॉलरशिप इमीडिएटली, राइट. वहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑप्शन ही होता है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि डेडलाइन के लास्ट डे पर हम लोग जाकर देंगे एंड वी विल गेट, नॉट लाइक दैट. सो आई एम डन विथ द सेशन from my side. If you have any questions, doubt, difficulties, you can raise your question, or else you can share your review about this session. All are just waiting. Sir, you should say thank you. We will say thank you and we will leave. No? या आपने कुछ ऑप्शन चूज किया, शायद मैंने आज नहीं बात किया, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, whether it is good or not, whether it has a certain opportunity or not. स्पोर्ट्स में अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. तो वो कोर्स करके आप स्पोर्ट्स से गवर्नमेंट कोटा से सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स अचीव कर सकते हैं. और कोई यस? डिप्लोमा करने के फायदे क्या होंगे? सबसे पहले एक बेस्ट बेनिफिट ये होगा कि 11-12 के कंपटीशन से आप बाहर हो जाओगे. 11-12 का कंपटीशन ह्यूज है, उसमें आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, क्लासेस ज्वाइन करना है. एवरी ईयर यू हैव टू इन्वेस्ट नियरली 1 लाख. सो 2 साल में 2 लाख आपको इन्वेस्ट करना है. उसके बाद यू विल फेस CET, JEE, और उसमें अगर अच्छा रैंक आता है देन यू विल गो फॉर हायर कॉलेजेस. इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू शुड गो थ्रू 11-12. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि इस 2 साल के बाद क्या होगा मुझे थोड़ी मालूम है, तो आई शुड डायरेक्टली गो इनटू डिप्लोमा. तो मेरा करियर सेट है कि मैं डिप्लोमा में जाकर इंजीनियरिंग के लिए जाने ही वाला हूँ. बट इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ
then I should go for 11th 12th. तो डिप्लोमा करने के बाद जेईई भी दे सकते हैं 11 बिकॉज डिप्लोमा इज कंसिडर्ड एज 11+2 10+2, उसके बाद भी दे सकते हैं। डिप्लोमा में मेरे हिसाब से एक ऑप्शन मुझे दिखता है आईटीआई, इसके अलावा और कोई ITI? No. ITI is separate stream. ITI is very different from diploma. Diploma is run by MSBTE. मैं जो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये डिप्लोमा रन कर रहा है। ITI महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट रन करता है, बट ITI अलग है। जो अंबरनाथ ITI आप देखते हो बाहर जाने के बाद ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस अंबरनाथ बदलापुर रोड, वो अलग है। दैट इज फॉर ट्रेड्स, डिफरेंट ट्रेड्स एंड अप्रेंटिसशिप होता है, जिसमें वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, AC रिपेयरिंग, विच इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड कोर्स, 6 महीने 1 साल 2 साल का ही कोर्स होता है। उसका डिप्लोमा के साथ कंपैरिजन नहीं। डिप्लोमा इज ऑफ 3 इयर्स। डिप्लोमा के ऑप्शंस क्या रहते हैं, कोर्स कैसे है? ये जितने भी ऑप्शंस थे उन सब का डिप्लोमा अवेलेबल है। बस कॉलेज क्या चूज करते हैं उसके ऊपर मायने रखता है। अभी मैं रिकॉर्डिंग में ये तो नहीं बोल सकता कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज बुरा है, बट अगर पर्सनली आप कभी मुझे कांटेक्ट करो तो आई कैन हेल्प यू आउट कि कहाँ आपके घर के नियर बाय के अच्छे कॉलेजेस में आपको बता सकता हूँ। बट डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में जाओगे तो सेट है कि मुझे कंपटीशन में नहीं घुसना है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई करियर, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। 11 12 करके फर्स्ट ईयर में जाना है। नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 6 फॉर बोथ द ऑप्शंस, मतलब 11 12 करके 4 साल का इंजीनियरिंग, डिप्लोमा 3 साल का करके 3 साल का इंजीनियरिंग। सो दोनों में यू विल इन्वेस्ट 6 years. So it will be like a schooling or college? College. Some colleges are having their uniform, some are not. But 11 12 में भी वैसे ही है। Treatment is as good as college, not school. सर वो डिप्लोमा के बाद लेके जॉब की सैलरी कम होती है, नहीं, बट मैंने कहा कि डिप्लोमा करके डायरेक्ट जॉब में जाओ। बट फिर भी मतलब 11 12 के बाद ज़्यादा सैलरी होती है डिप्लोमा में। ये किसने कहा? 11 12 करके ज़्यादा साल। एक एग्जांपल मुझे सुनना है आपसे, कौन से कंपनी में 11 12 के बाद ज़्यादा साल? नहीं पता, बट आपने सुना है ऐसा? सैलरी कम होती है डिप्लोमा में। नो, गलत सुना आपने ये। वैसे तो सैलरी इंजीनियरिंग करने के बाद भी ज़्यादा मिलेगी, ये भी गलत है। इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यूर सबका आंसर पता है। मेरे पास n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं कि 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, उसने 2017 में एक सैटेलाइट बनाया था 60 ग्राम वेट का। कितना? 60 ग्राम वेट का क्या बनाया था? सैटेलाइट। और यू वोंट बिलीव, इसरो ने उसे लॉन्च भी किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जब थे उस पीरियड में उस बच्चे ने बनाया था, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। उसे अगर कोई देखेगा एट फर्स्ट साइट आप सोचोगे इनएक्टिव स्टूडेंट है, हेल्दी अनहेल्दी स्टूडेंट है, कैसे भी वियर्ड दिख रहा है, बड़े बड़े स्पेक्स पहने हुआ है, बट ही अचीव्ड हिज गोल। और आज वो बाकायदा इसरो में रिसर्च साइंटिस्ट है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट 12th करके ज़्यादा जॉब सैलरी मिलेगा या डिप्लोमा। सी गाइज, आप ये सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, माइंड से हटा दो। आई हैव n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, अच्छा खासा MBA किया है बट जॉब ही नहीं है। चलो मैं एक एग्जाम्पल आपको लाइव, मैंने मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बता दूं। When I was working as principal, I used to recruit teachers or faculties, and उस वक्त जो इंटरव्यू लिए जाते थे in a semester, I used to take interviews nearly 200 to 250 candidates. So reputed मुंबई के colleges के students जॉब के लिए जब वहाँ आते थे, graduates, उनको मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता था। Say for example, the person is from background of electrical or electronics, तो उसके लिए मेरा बेसिक क्वेश्चन क्या होता था? ध्यान से सुनो, इंटरव्यू कैसे फेल होते हैं। My basic question was not introduce yourself. No, why to introduce yourself?
रिज्यूमे में दिख रहा है ना, then why to ask that foolish question, introduce about yourself? नहीं, straightforward I used to ask, looking at all the electronic appliances, tell me in which combination they are connected. But obvious it is in parallel, right? But if you ask this question to engineer nowadays, that person can sir, I think it is in series as all are connected in a line. Foolish answer. ऐसे कभी आंसर होता है? बट दिए है बच्चों ने आंसर, टॉपर फ्रॉम वेल नोन कॉलेजेस. देन आई आस्क सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस पता है? यस पता है. एक लाइन में सीरीज है, सामने सामने पैरेलल. व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, सामने सामने पैरेलल. Where current gets divided, voltage remains same, parallel. Where current remains same, voltage gets divided, series. Right? Wires कैसे भी घुमाने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है. But connection क्या कहता है, that is important. One gets off, still remains are working parallel. One gets off, all gets off, series. Common sense है ना. बट अगर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स ये आंसर नहीं कर सकते, कैन वन रिक्रूट दैट पर्सन? ऑब्वियसली नॉट. एंड वंस आई एक्सप्लेन दिस टू देम, दे सेड नो सर, बहुत साल हुआ ना, ब्रश अप करना पड़ेगा. व्हाट नॉनसेंस, ब्रश अप करना? तो ऐसे नहीं होना चाहिए. तो यू मस्ट अवेयर ऑफ ऑल बेसिक थिंग्स. जैसे अगर मैंने कहीं पूछ लिया ओम्स लॉ क्या है, तो उसका आंसर भी आना चाहिए. व्हाट इज ओम्स लॉ? बट whom voltage, whose voltage it is you are talking about? Not or a conductor. We should discuss Ohm's law about conductor. In a current carrying conductor, potential difference at the end of the conductor is directly proportional to the electric current flowing through the conductor, keeping its physical state such as temperature, resistance, length constant. जो basic definition आप लोगों की book में है. And then you can write V is directly proportional to I, then proportionality constant is R, V is equal to IR. But that is most important because अगर AC के left side में या right side में आप देखो तो पावर रेटिंग मेंशन्ड है. रेफ्रिजरेटर की भी बैक साइड पर पावर रेटिंग इज मेंशन्ड. सो एवरीवेयर वेयर यू आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल टू द बिगेस्ट एप्लीकेशन, यू कैन चूज एनी, हर एक के ऊपर क्या लिखा है? पावर रेटिंग. एंड दैट इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, हाउ यू कैन do electrical or electronics or instrumentation engineering? You cannot. अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए कौन कौन सोच रहा है कि आई कैन गो फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग? रेज योर हैंड. कोई नहीं? ओके, यू नहीं. पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना. मेरे लिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है. फर्स्ट यू शुड आंसर दैट, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन. स्टैंड अप. कंप्यूटर जैसे यहाँ दिख रहा है, उसे कितना वोल्टेज चाहिए टू वर्क? How much volt it requires? Voltage. My question is clear. Voltage. Ampere में अगर आप बताते हो तो that is not voltage. Ampere किसका यूनिट है? Current. 15 volt. But आपने तो 220 दे दिया है उसको. प्लग किया ना, घर में कितना? करेक्ट. उसे क्या कहते हैं? SMPS. क्या कहते हैं? जो एक बड़ा सा बॉक्स उसके बैक साइड में होता है जहां पर हम लोग प्लग इन करते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई. जो आपने 220 वोल्ट दिया है उसे वो 15 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा. एंड 5 एम्पियर कहीं नहीं है हमारे पास. यहाँ पूरे लैब में वी डू नॉट हैव 5 एम्पियर. फॉर डोमेस्टिक पर्पस और होम अप्लायंसेस वी हैव ओनली 1 एम्पियर ऑफ करंट. हर एक के घर में कितना करंट है? नॉट मोर देन दैट. सिंगल फेज यूज कर रहे हैं इसलिए.
राइट? यस, योर क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड कोर्स स्कूलिंग और डिप्लोमा, ये तीनों में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? इंटीग्रेटेड कोर्स, और स्कूलिंग और डिप्लोमा। ओके। 11-12 अगर करना है तो इंटीग्रेटेड इज आई थिंक बेस्ट। व्हाई इट इज बेस्ट ये बोलना गलत है, बट बेस्ट है। सर गलत क्यों है? बिकॉज ट्रेडिशनल कोर्स को ब्रेक करके हमने इंटीग्रेटेड नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जहाँ पर मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि क्लासेस में जाना चाहिए, बट एक्चुअली आई एम वेरी मच अगेंस्ट विथ क्लासेस। अगर कॉलेजेस और स्कूल्स है, सारे टीचर्स हम सब मेहनत ही कर रहे हैं आपके लिए, तो व्हाई टू गो फॉर क्लासेस? आई एम सॉरी इफ यू आर गोइंग, बट अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो उसमें ऑप्शन क्या होता है? कॉलेजेस में मत जाओ, कॉलेजेस विल मैनेज योर अटेंडेंस एंड यू विल एडॉप्ट योर एजुकेशन इन पर्टिकुलर प्राइवेट कोचिंग। वो आपका पूरा देखरेख करता है, सुबह से शाम तक आप उन्हीं के पास रहते हैं। बट मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा, शायद आप घर के आसपास कोई भी एक बेसिक कॉलेज चूज करो। 11-12 ही करना है तो do not go for Mumbai side colleges, not even Kalyan side colleges. If you are staying at Ambernath, I will suggest choose nearby college for 11-12 to save your time. Important time, right? इंटीग्रेटेड बेस्ट है, बट उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है। और कुछ इंजीनियरिंग करना ही है तो इतने सारे क्वेश्चंस है, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर डिप्लोमा। तो सीईटी नीट जेडब्ल्यू के बाहर चले जाओगे, टेंशन भी नहीं रहेगा। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेंशन। बर्डन के नीचे हम लोग काम नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। डेडलाइन सर पर है, परसों असाइनमेंट देने हैं, टीचर्स ने बताया कल अगर नहीं लाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो डेडलाइन में काम करना बहुत परेशानी होती है। सो बर्डन के अंडर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो अगर आप बर्डन नहीं लेना चाहते हो, डिप्लोमा इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे ऐसे अगर आपको लग रहा है, सो मुझे कम्युनिकेट करके दे देना, आई टेल देम, और वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड कि कैसे सेट किया जा सकता है। Any other question? Yes. So my question is in concern with medical, because like I've seen many doctors which are having very common fields like gynae, pathology, cardio, but they are not more fields like psychiatry, neurosurgery in India. So even if I ask someone, they say that you will get a good degree from foreign and then you can get those jobs and It is not like that we should go outside the country and we adopt best degree from them. Yes, it is true that they are having best technologies, but we are having best experienced doctors, because throughout the world around 250 countries are there, and if I calculate the population of complete world, it is around 700 crore, and out of that 140 crores population is about our India. It is now 150 crore, right? Because last 2011 में कैलकुलेशन हुआ था, अब तक हुआ नहीं है। तो उसमें से बेस्ट एक्सपीरियंस इंडिया में ज़्यादा है। आपने KEM, JJ ये हॉस्पिटल्स विजिट किए? हैव यू विजिटेड दैट हॉस्पिटल्स? ओके, तो विजिट करो, यू विल फाइंड बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर्स। जो वर्ल्ड में नहीं है वो यहाँ पर है। अगर आपको करना ही है, ऐसे कॉलेजेस में ज्वाइन करो जहाँ पर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को अटैच्ड हो। अगर आप एज यू सेड दैट साइकेट्रिक्स और अदर फील्ड्स के लिए मुझे अगर जाना है, बट देयर आर नॉट गुड ऑप्शंस इन इंडिया, इट इज़ नॉट लाइक दैट, वी हैव बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शंस इन इंडिया, बट शायद आप उसको नहीं जानते, राइट? अगर आप कोई ऐसा फील्ड चूज करना है, यू कैन यू जस्ट लेट मी नो, आई गिव यू द प्रॉपर ऑप्शंस फॉर यू। और अगर आउटसाइड द इंडिया भी करना है तो इंडिया से कम फीस में आप बाहर से जाकर डिग्री करके आते हो, इसलिए बहुत लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करते हैं।
जैसे कि अगर इंडिया में एक एग्जांपल, एक नवी मुंबई का अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो एक कॉलेज का फीस है 7 लाख पर एनम। उसी के बाजू में दूसरा कॉलेज है, उसका फीस है 27 lakhs पर एनम। ऐसे भी डिफरेंसेस है। नवी मुंबई के 2 कॉलेजेस की मैंने जस्ट बात किया, बट वही अगर जे हिंदुजा, KEM, इनके कॉलेजेस जो है या पोद्दार कॉलेज जो है, वहाँ की फीस ना के बराबर है, जस्ट बिकॉज दे गेट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन नीट अगर ऑल इंडिया रैंक्स में हो तो ही आप वहाँ जा सकते हो। इट मीन्स यूर ड्रीम मस्ट बी 700 मार्क्स आउट ऑफ 720, 99 परसेंटाइल, और वो मिलता है इजीली। देयर इज नो क्वेश्चन टू रेज योर आईब्रोज, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर शुरुआत होनी चाहिए, प्रॉपर गाइड होना चाहिए। इफ यू विश टू स्कोर 99 परसेंटाइल you can, and if you find any hurdle, I'll share my number. Any time you can ping me on WhatsApp. कॉल पे शायद अवेलेबल नहीं हो सकता, बट WhatsApp पे आई कैन गाइड यू कि कैसे 99 परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। बट उसका शुरुआत आज से करो तो होगा, 11th खत्म होने के बाद करो तो नहीं होगा। एनीथिंग एल्स? यस। So my question is, mostly everyone follows education system. Okay, I agree with it. Following medical and engineering. Instead, nowadays people don't really follow their hobbies, like dancing, singing, art. So is it good to follow your hobby? First, I will answer why people are not following them, because they find it is insecure. As far as career is concerned, it is 80% insecure to follow my hobby, because if I am good at painting and if I will adopt that as my career, there are 80% chances that I will not land properly as far as career is concerned, and that's why people do not go for hobbies. But if you are sound enough for particular hobby, even if joining Olympics or athletics, you can achieve more than others. Sir, in India, mostly I don't find too much social workers and child psychologists. No, but as per my knowledge, I have seen n number of people working for social works and child and women. बहुत लोग काम कर रहे हैं. Sir, so should we opt that? Yes, you can. Sir, any suggestions for it? उसके लिए एक कोर्स होता है, उसका नाम BSW, MSW एंड BSW, ऐसे दोनों कोर्स हैं, बैचलर्स इन सोशल वर्क एंड मास्टर्स इन सोशल वर्क, ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है, सो यू कैन अडॉप्ट दैट। Sir, इसके आगे क्या? उसके आगे आप NGO को ज्वाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, WHO को ज्वाइन कर सकते हो, यूनिसेफ को ज्वाइन कर सकते हो। Internationally, you can explore yourself. Any other question? So will you please tell about us pilots or jobbing on pilots? उसके लिए ऐसा कुछ अलग कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। Once you complete aeronautical or once you complete graduation even, you can add up for pilot course. That can be private, that can be government, and you can join. उसके लिए स्पेशल पायलट, अगर आप आर्मी के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए स्पेसिफिक कोर्स करना ज़रूरी है, बट जस्ट प्राइवेट अगर आप कंपनी के लिए पायलट बनना चाहते हो तो उसके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ पायलट और ट्रेनिंग ऑफ पायलट एंड यू कैन एंटर इनटू दैट। तुर्भे रेलवे स्टेशन के एग्जैक्टली सामने एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, वहाँ पर जाकर आप मिलो, वहाँ पे कॉकपिट और वो सब कॉन्सेप्ट वहाँ पर रखे, प्रैक्टिकली यू कैन गो एंड चेक दैट एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट मोर आइडियाज अबाउट दैट। सी पायलट एक छोटा जॉब एप्लीकेशन है,
ये कोर्स नहीं है, समझ रहे हो ना? मतलब यू आर जस्ट थिंकिंग कि कार ड्राइवर, मैं कह रहा हूँ कि ड्राइवर बनने से अच्छा कार मैन्युफैक्चरर या कार डेवलपर के बारे में सोचो। यू आर थिंकिंग अबाउट ड्राइवर, तो ये छोटा सा सर्विस है। वो भी क्यों आपको अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, ऐसे आपके माइंड को लग रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक छोटा जावा कोर्स करके भी आप 15 से 20 लाख का पैकेज ले सकते हो। पायलट के लिए एज रिस्ट्रिक्शंस भी है, हाइट रिस्ट्रिक्शंस भी है, हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस भी है, एंड प्रोबेबिलिटी टू गेट दैट जॉब इज वेरी 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 लेस। जैसे सीए एग्जाम क्रैक करने का प्रोबेबिलिटीज 2:2000, यूपीएससी आईपीएससी क्रैक करने का प्रोबेबिलिटी 2:2000। समझ रहे हो ना? बिकॉज वी आर नॉट वरीड अबाउट नेगेटिव मार्किंग्स, वी आर ओनली वरीड अबाउट टिक मार्क करके नो, इट इज नॉट लाइक दैट। नेगेटिव मार्किंग्स भी है उसमें। आई कैन नॉट डू 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसा नहीं है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड और गेटिंग कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी हाई। यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन था? यस। Sir, I'm looking for why is the range study in mathematics? Other, is there other than engineering you have to go with higher Yes, you can adopt a BSc, MSc Mathematics, and from that you can enter into research of mathematics. Can you elaborate? Bachelor's of Science, and you can choose a specialization of mathematics. You can enhance yourself in mathematics in that, and once you complete your graduation, post graduation, you can go for mathematics scientists or mathematics researchers under IIT or under any other government organization. Even if you wish to go outside our country, we have ample of opportunities for mathematicians and physics related scientists, because since last 125 years we have not achieved the Nobel Prize, not even in maths, not even in physics, science. So that is very disappointing point as far as 150 crores of population is concerned. Yes, we have achieved great in Dreams 11, Jungli Rummy, right? Instagram, YouTube, we have achieved a lot. But the saddest part, we have not achieved in science and mathematics, even if our ancient history, ancient science, ancient Vedic is strong. So I wish, as far as Kendriya Vidyalaya school students are concerned, outside this, the market is very worst. See, केंद्रीय विद्यालय में स्कूलिंग करना एक कुछ लोगों का ड्रीम है, और वो आप लोगों ने ऑलरेडी किया है. Many students like us are dreaming to enter into केंद्रीय विद्यालय. अरे यार, शायद मैं स्टूडेंट होता यहाँ का, है ना. केंद्रीय विद्यालय के लिए बाहर एक रिस्पेक्ट अलग है. One of your senior student, ex-student is my friend Vaibhav Vasant Survase. He has completed schooling from this school. I think 2004 में वो पास आउट है यहाँ से. 2004. He is my best friend. So उससे मैंने जितना सुना है केंद्रीय विद्यालय के बारे में is awesome and it is beyond my imagination. So I think आप सब लोग इतने अच्छे स्कूल से अगर पास आउट हो रहे हो तो आपके विजन भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, विजनरी होने चाहिए. नॉट ओनली सैलरी बट यू कैन थिंक अबाउट ONGC, BARC, ऐसे जॉब्स के लिए भी आपने सोचना ज़रूरी है. मैं सोच रहा था आप में से कोई मुझे पूछे सर BARC के लिए क्या होगा, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है क्या, बट अभी तक आया नहीं क्वेश्चन. बट नॉट एन इशू. BARC में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, राइट. Think accordingly. Any other question?
No, no, no. For that, there is no entrance exam. I said, you are talking. I think it is it is collaborated with IIT also. Yes. हाँ, तो मैम हैज़ वन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आईसर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में मैम ने. नेस्ट तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, नेशनल. हाँ, मतलब ये सबको पता है कि नेस्ट का दे सकते एग्ज़ाम, एनटीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं. 2 एग्ज़ाम्स हैं, नेस्ट एंड एनटीएससी. ये 2 एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं. नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एंड नेस्ट, ये 2 एग्जामिनेशन हैं जो देकर आप अच्छे कॉलेजेस में ज्वाइन कर सकते हैं. यस. एंड एनटीएससी का अगर आप एग्ज़ाम पास होते हो तो आपको स्कॉलरशिप ₹1200 लास्ट 2 साल तक तो था, इस साल शायद ऐड ऑन किया. ₹1800 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है वंस यू क्लियर एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. So, I talked about the medical. I've seen doctors who are in army, and many of the doctors dream that they would be in the army. So, how to get in there and what is the procedure? For that, there is one examination called SSB once you complete your graduation, and second, you can enter through UPSC even. But for that UPSC is for service sector, but again you can serve yourself in government. But particularly if you wish to enter into army, SSB is the only way to enter into army. There are institutions like TIF in Mumbai. Yes. Sir, how can we get into? One branch is there near to you. It is Karjat. Sir, that is also in Kolkata. Yes, yes, yes. I I saw many of them who have done masters in PhD. Ma- Yes. Sir, so how can we get into? हाँ, उसके लिए उनका पर्टिकुलर वेबसाइट पर वैकेंसीज अवेलेबल है. इफ़ यू फिट इनटू दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू कैन एंटर इनटू दैट. उसके लिए अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. Sir, what we got it. Sir, हम उसके बाद क्या करें? उसके बाद तो करियर सेट है ना. वंस यू गेट इनटू टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो उसके बाद और आगे कुछ करने की मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है. बट यू कैन एनहांस योरसेल्फ. एक बार मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गया, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट का जॉब मिल गया, उसके बाद तो आपका जो विषय वो कर सकते हैं. वैसे ही और एक है GMRT. मैं अभी ये टॉपिक के बाद वी विल कंक्लूड दिस सेशन. हाँ, बस एक लास्ट पॉइंट बताता है. GMRT is also there, Giant Millimeter Radio Telescoping, Asia's only center which is in Pune, near to Narayangaon. That is also the research center for millimeter wave frequencies. So as you said, TIFR, so similar to that, GMRT is also there. So you can once you complete telecommunication, you can get job opportunities over there. I think we should stop because ma'am has given one notice that 12:20 शायद आपका कुछ बस और निकलने का टाइम है. Thank you so much for calling me here. I am very much thankful to your principal and the faculty members present over here to give this golden opportunity to communicate with you all champions. And I wish you will score more than 90-95%, and I wish you will get better job opportunities, and those who are seeking for packages, again they will get good packages. Thank you so much. Thank you.